आपके हजारों कमेंट्स के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया दैट आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक फंडेड अकाउंट से एकदम जीरो से लेके एंड तक पे आउट कैसे रिक्वेस्ट करना है। मैं आपको ट्रेड भी दिखाने वाला हूँ। ये ट्रेड मैंने लाइव अपनी यूनिवर्सिटी के साथ लिया था, लाइव स्ट्रीम पर मैंने ये ट्रेड को एक्सिक्यूट किया था एंड ये ट्रेड हमारे फेवर में गया। आई मेड $2,660 ऑन दिस मेरे फंडेड अकाउंट पे। बाकी का ट्रेड मैंने 1:1 पे एग्जिट कर दिया था एंड आपको पूरा लाइव ट्रेड का एक्सिक्यूशन दिख जाएगा। Alright, 5 minutes left to market open. This is our zone of liquidity, right? I believe if we get a good bullish candle here, see we enter somewhere here. Stop loss of this. Price ऊपर जा रहा है, ठीक है. It goes up like this, comes back, retests on this zone, which is very highly possible. यहाँ पे retest होगा bullish candle का, तब आप यहाँ पे entry ले सकते हो with a stop loss below this particular zone. So that would be a better entry if you want less risk. But again, अगर market continuously ऊपर जाता है like it happened on this day, did not give us a retest, did not give us a proper entry, then of course you will miss out on the trade. So completely up to you how you want to take it further. We've got market open now in a bit. The good part is market is opening right in our zone. There we go. Market is opened. Let's see how this goes. And of course, if I enter, I'm gonna let you know. So what we can do is, this is what it should look like. You can enter half now. You can enter half with a stop loss of this. Volume looks good. I've got a break of structure here. That's why I'm confident on the half part. So I'll let it run. Our target is 21,421. Alright guys, we've finally entered half. Let's hope this is a zero candle day. Zero candle day. It looks like it. Let's see. 5-minute candle, so looks good. Yesterday also we had a great start, but unfortunately market could not find strength. Today also looks like a good start. Let's see if market sustains on it. Right, that looks good. You can enter full now. You can enter full entry. Full entry has been activated. A plus setup activated because right in our zone we've got a bullish candle. So looks good to be honest. Now it's almost at a stop loss. Maybe the market wants to do a structure shift and that's fine. Let's see if it takes out a stop loss or it goes back up. There's a high chance it might go back up because यहाँ पे news था 4:30 को. So a lot of news liquidity might be there. Though I doubt there might be a lot of liquidity here because news was there but इतना ज़्यादा impact नहीं आया था news का. अगर ये trade stop loss hit होता है then market भी crash होगा, Bitcoin भी नीचे जाएगा and gold will also continue going up. That will basically a entire structure shift in the market. If you look at it from a perspective of a macro structure, we are in a position where we have literally made a bet which is right in favor of the market structure. अभी market अगर आप देखोगे gold का, it's going down, it's pulled back, it's supposed to go down again, right? But now from here, if it continues to go up, that's a market structure shift, right? Then from here, market pulled down, now it's going up. Now from here, it continues to go down, it's a market structure shift. Price will come down at least till this support level, right? Almost took out my stop loss. I'm still in. Somehow I'm still in. It didn't take my stop loss yet. Even if you look at Bitcoin, price formed a double top, can potentially go down from here and come till this level. So maybe we take a break until then, no problem. It is not your wins that define you as a trader, it is your losses and how you take those losses that define you as a trader. It almost took out my stop loss. I'm surprised. Imagine it reverses from here, goes straight into target. That would be insane. It would be an interesting 15-minute candle right there, to be honest. My buy stops are placed high. Completely up to you. आपको ज्यादा रिस्क लेना है तो आप ले सकते हो, नहीं लेना है मत लो. Alright, we are looking good so far. I am still not happy with the volumes of this, to be honest. I am up about $1,500. I don't know about you guys, but I would like some heavy volumes on this. Yes, price has gone up, I agree, but I like even US30 तो भाई US30 तो अलग ही ट्रिप में है फिलहाल. But I want to see some volumes, to be honest. I mean, this has demanded a lot of patience from us, so I really hope this goes and hits our target for sure. I think there must be some sort of stock that might be pulling down US 100, but I think it's just a matter of time it starts following up. Let's see what's S&P doing. S&P is also looking very, very attractive, very, very good right now. We've been waiting almost 1.5 घंटे से हम वेट कर रहे हैं. Stupid consolidation. 1.5 घंटे से we've been waiting for this and it's finally going up now. So yeah, let's hope guys, let's hope this goes in our favor. If this touches this level, again, so 1:1, आप अपना stop loss trail कर सकते हो या तो फिर आप अपना हाफ प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो. आई वुड रिकमेंड बुकिंग हाफ, डिपेंडिंग कि मार्केट यहाँ कैसा रिएक्ट करता है. मेरे हिसाब से मार्केट जो स्ट्रेट इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा और टारगेट लेगा. दैट्स व्हाट आई बिलीव शुड हैपन. अंटिल देन लेट्स वेट इट आउट. लेट्स सी. मार्केट इज प्रीटी स्लो, सो लेट्स वेट एंड सी व्हाट हैपेंस. गाइस, आई एम आउट 50% and I also took this trade on a 100K live account, so I've also secured a $2,000 payout which I will be requesting live on YouTube as well. So I think great trade, amazing trade. The trade is pretty much risk free, but on the
100K account I exited full because I wanted to secure a payout and I want to make a video on how to request a payout and all that stuff. So yeah, just $2,000 on that. I made about 2660 on that and I'll request $2,000 with an 80% profit split. So guys, जैसा कि आपने लाइव स्ट्रीम में देखा, मैंने ट्रेड को क्लोज कर लिया था $2,660 के प्रॉफिट पे, विच इज अराउंड 2.2 लाख इंडियन रुपीस। अब 2,20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा कि ये वो सेम अकाउंट है जहाँ पे मैंने एग्जिट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक ही ट्रेड लिया हुआ है एंड मेरे ट्रेड का हिस्ट्री भी आप देख सकते हो। सेम 3 पोजीशन जो मैंने लाइव में ली थी वो यहाँ सेम 3 पोजीशन है। अब जो है यहाँ पे हम पे आउट को रिक्वेस्ट करेंगे। अब ये जो ट्रेड मैंने लिया था वो लिया था 15 तारीख को, 20 तारीख है आज जब मैं पे आउट रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। हम रिवॉर्ड सेक्शन में जाएंगे एंड वी विल क्लिक ऑन रिक्वेस्ट रिवॉर्ड। ठीक है, अब रिक्वेस्ट रिवॉर्ड पे ऑफ कोर्स आई हैव दैट वन अकाउंट जिस पे मैं फंडेड हूँ। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू पुट मेरा रिवॉर्ड अमाउंट 2660 क्योंकि मेरा 2,660 का प्रॉफिट हुआ है। आई विल सिलेक्ट द पेमेंट मेथड एज राइज। मैं नॉर्मली क्रिप्टो करता हूँ बट आज मैं राइज सिलेक्ट कर रहा हूँ टू मेंटेन ऑथेंटिसिटी, बिकॉज बहुत सारे लोग ये कमेंट कर देते हैं, ये क्लेम कर लेते हैं कि फंडिंग के साथ आप पार्टनर हो तो आपको फेक पे आउट मिल रहा है। बट मैं राइज के थ्रू रिक्वेस्ट करूंगा तो इट कैन नॉट बी फेक्ड बिकॉज राइज इज ऑल्सो पब्लिक ब्लॉकचेन एंड राइज इज अ मिडिल मैन प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऑफकोर्स फेक नहीं हो सकता, राइट। सो मैंने राइज सेलेक्ट किया हुआ है। आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू डू क्रिप्टो, क्योंकि क्रिप्टो से करोगे तो 1 स्टेप में हो जाता है, सिंपल डिपॉजिट हो जाता है। बट ठीक है, यहाँ पे मैंने राइज रिक्वेस्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2,660 का मेरा प्रॉफिट है, जिसमें से 80% रिवॉर्ड स्प्लिट मुझे मिलने वाला है। सो अब मेरा रिवॉर्ड अमाउंट आया था 2118, तो $2,118 के आसपास मेरा रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा, अब हो जाता है रिवॉर्ड रिक्वेस्ट। सो जैसे कि आप देख सकते हो रिवॉर्ड रिक्वेस्ट हो गया। यहाँ पे दिखा रहा है कि इट इज रिक्वेस्टेड एंड जितना मैं फंडिंग बिल्स को जानता हूँ, जितना मैंने पे आउट्स लिया हुआ है फंडिंग बिल्स के साथ, मुझे पता है कि आज के आज प्रोसेस हो जाएगा। 90% चांस है आज के आज प्रोसेस हो जाएगा, और आज के आज प्रोसेस नहीं भी होता है तो मैक्सिमम कल तक प्रोसेस तो हो ही जाएगा। सो गाइस, गुड न्यूज, मेरा पे आउट आ चुका है सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे 40 मिनट के अंदर। मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ दिखा सकता हूँ। मैंने अपना पे आउट रिक्वेस्ट किया था सुबह 11:30 बजे और मेरा पे आउट आ गया 8:11 बजे शाम को दुबई टाइम। मैं बस अभी नीचे पूल में था आफ्टर माय वर्कआउट एंड मुझे नोटिफिकेशन आया कि मेरा रिवॉर्ड प्रोसेस हो गया है एंड अब मैं यहाँ ऊपर आके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, अभी फिलहाल मेरा जो अकाउंट है वो फिलहाल अभी वापस $100,000 पर चला गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा टोटल रिवॉर्ड्स अब जो है $2,660 हो चुका है, राइट। अब अगर हम हमारे रिवॉर्ड सेक्शन में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो सेम अकाउंट का 11:30 को मैंने रिक्वेस्ट किया था और ये मेरा अकाउंट पे जो है प्रोसेस हो चुका है। अगर मैं इसको लिंक पर क्लिक करूंगा तो हमें सर्टिफिकेट भी दिखा देगा। जैसा कि आप देख सकते हो पे आउट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे हमें दिख चुका है। तो इसको आप QR कोड को खुद स्कैन करके आप इसको खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। एंड अब हमारा ये पे आउट जो है वो हमने राइज में लिया हुआ है। पे आउट हमने राइज पर रिक्वेस्ट किया तो अब राइज पर चलते। राइज पे आप देख सकते हो मुझे पे आउट आ चुका है 2118 का। इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं राइज को जस्ट फॉर यू गाइस। तो राइज पर जो है, अब राइज जैसा कि आपको पता होगा, राइज एक मिडिल प्लेटफॉर्म है जो पेमेंट्स को फैसिलिटेट करता है। एंड राइज का मेन रीजन मैंने इसलिए चूज किया बिकॉज राइज जो है इट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी फेक। तो यहाँ पे हमारा रिफ्रेश हो चुका है। ओके, हमारा बैलेंस इज हियर। सो अब हम जाएंगे विड्रॉ पे। अब जब आप विड्रॉ करोगे तो अगर आपने पहले पे आउट रिक्वेस्ट नहीं किया है राइज के ऊपर तो आपको यहाँ पर जो है आपके डॉक्यूमेंट्स जो है उनको साइन करने पड़ेंगे। ठीक है, आपका प्रोफेशनल एग्रीमेंट साइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो। बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ये सब झंझट में मत पड़ना, सीधा अपने क्रिप्टो वॉलेट में विड्रॉल लेना। ठीक है, मैं ऑथेंटिसिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए मैंने राइज पर इस विड्रॉल को लिया हुआ है। अदरवाइज मैं भी मेरे सारे विड्रॉल्स जो है क्रिप्टो में ही लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं मैक्स पे क्लिक कर दूंगा बिकॉज मुझे ऑफ कोर्स मेरा सारा पैसा विड्रॉ करना है। ये लेफ्ट में जो भी आपको दिख रहा है एक्सटर्नल अकाउंट, ये सारे मेरे क्रिप्टो वॉलेट्स हैं। अब जो है यहाँ पर मैं कंफर्म पर क्लिक करूंगा और मैं अपना सिक्योरिटी की पासवर्ड डालने वाला हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे मैं अपना सिक्योरिटी की पेस्ट कर दूंगा। आई विल क्लिक ऑन कनेक्ट। जैसे ही मैं क्लिक ऑन कनेक्ट पे करता हूँ क्लिक, तो ये पे आउट प्रोसेस हो जाता है एंड जैसे कि आप देख रहे हो इट इज प्रोसेसिंग राइट नाउ। बहुत स्मूथ है, बहुत फास्ट प्रोसेस है राइज के साथ भी, बट मैं फिर भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप क्रिप्टो के थ्रू कीजिए। ओके, तो यहाँ पे मेरा पे आउट जो है यहाँ पर दिखा रहा है कि इट्स इज प्रोसेसिंग। लेट्स गो एंड चेक इनसाइड माय क्रिप्टो वॉलेट की एक्चुअली ये प्रोसेस हुआ है या फिर डिपॉजिट कितना जल्दी होता है। बिकॉज इसी रीजन से मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि राइज आप यूज ना करो, क्योंकि आप राइज यूज करोगे तो आपको 2 प्लेटफॉर्म्स के बीच में डील करना पड़ेगा। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो अभी मेरे अकाउंट में मुझे जो है 2,118 का डिपॉजिट आ चुका है मेरे वॉलेट के अंदर एंड इसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपको अटैच करके दिखा दूंगा। सो
नाउ दिस इज फाइनली गाइस, दिस इज हाउ यू एग्जैक्टली रिसीव योर पेमेंट्स। अगर आप मैं डैशबोर्ड पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो मेरा बैलेंस ऑफ कोर्स 0 हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैव टेकन द विड्रॉल, बट 2,20,000 रुपए का पे आउट आई टुक स्मूथली विद इन 24 आवर्स, विद इन नॉट इवन 10 आवर्स, 8 घंटे के अंदर पूरा हो गया। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा बैलेंस जो है वापस 0 हो चुका है। अगर हम इसमें एक्टिविटी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट ट्रांजैक्शन में भी राइज में दिख जाएगा 2,118 ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है। यहाँ पे प्रोसेसिंग दिखा रहा है बट मुझे आ चुका है वॉलेट के अंदर। एंड यहाँ पे पुराने विड्रॉल्स है जो मैंने लिए हुए हैं। सो फंडिंग पिप्स से मैंने पे आउट लिए हुए हैं एंड कुछ फंडिंग टिक्स से मैंने पे आउट लिए, बट उसके बाद आप अगर देखोगे तो मेरा लास्ट पे आउट जो था वो फंडिंग टिक्स से था, बट उसके पहले जो मैंने पे आउट लिया था वो सीधा 2024 में था। क्यों? क्योंकि मैंने राइज यूज करना बंद कर दिया और मेरे सारे पे आउट जो है वो क्रिप्टो से डायरेक्टली लिए जाते थे एंड लिए जाते रहेंगे फ्रॉम माय अदर फ्यूचर पे आउट्स एज वेल। सो गाइस, ये था एक पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन। अब आप बहुत सारे लोग ये पूछोगे कि अब क्रिप्टो तो आ गया, अब क्रिप्टो को बैंक अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करना है। अब आपको क्या करना है कि आपको एक ऐसा इंसान ढूंढना है, इन्हें यूजुअली OTC डीलर कहते हैं या USDT डीलर कहते हैं। हर एक सिटी में एक डीलर होता ही होता है। यू शुड कॉन्टैक्ट समबडी हु इज इनटू ट्रेडिंग, यू शुड कॉन्टैक्ट समबडी हु इज इनटू फाइनेंस और क्रिप्टो, एंड आपको उनसे डील करनी है। उनसे आपको ये कहना है कि मेरे पास क्रिप्टो है, आई वांट टू सेल माय क्रिप्टो करेंसी टू यू फॉर कैश। मेरे पास USDT पड़ा हुआ है या USDC पड़ा हुआ है, मुझे आपको ये USDC को बेचना है फॉर कैश। एंड ऑफ कोर्स डू दिस ट्रांजैक्शन विद समबडी यू ट्रस्ट, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे विदाउट इन्वॉल्विंग एनी बैंक अकाउंट, बिकॉज अगर आप बैंक अकाउंट में ट्राई करोगे इस पेमेंट को लेना तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। डू नॉट पुट योर ओन बैंक अकाउंट एट रिस्क। सिंपल क्रिप्टो में पे आउट दीजिए, उस क्रिप्टो को बेच दीजिए, उस क्रिप्टो को बेच के कैश लीजिए, फिजिकल कैश लीजिए या बैंक ट्रांसफर करवा लीजिए। मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा कि बैंक ट्रांसफर मत करवाना, बैंक को इन्वॉल्व इसमें मत करना। आप फिजिकल कैश लीजिए एंड एंजॉय कीजिए जो भी आपको करना है उसके साथ। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प। थैंक यू सो मच। सो गाइस, पुराने वीडियो में मेरे कैमरे का फोकस खराब हो गया था थोड़ा सा, सो आई वाज लाइक यू नो व्हाट, एक और पे आउट रिक्वेस्ट करके दिखा देते हैं, बिकॉज पहले पे आउट में मैंने वैसे भी राइस से रिक्वेस्ट किया था। अब इस पे आउट में मैं आपको दिखाऊंगा रिक्वेस्ट करके क्रिप्टो से, ठीक है। तो आप जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे फिलहाल उस सेम अकाउंट में अगर मैं इस पे मंथ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम अकाउंट में मैंने पे आउट रिक्वेस्ट किया था, मेरा बैलेंस नीचे चला गया, फिर मैंने फिर से प्रॉफिट किया एंड अभी मेरा कुछ $1,400 का प्रॉफिट है इस अकाउंट पर। तो मैं फिर से इस पे आउट रिक्वेस्ट करूंगा और इस बार आपको मैं क्रिप्टो से पे आउट रिक्वेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो हम जाते हैं सिंपल पे आउट की तरफ, रिक्वेस्ट रिवॉर्ड। अब हम जाएंगे, हमारा अकाउंट सेलेक्ट करेंगे एंड अब मैं इसमें डालूंगा मेरा क्रिप्टो एड्रेस, ठीक है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, आपका जो क्रिप्टो एड्रेस आप डालने वाले हो फंडिंग पिप से रिवॉर्ड रिक्वेस्ट करते वक्त, तो सबसे पहली चीज सिर्फ और सिर्फ TRC20 एड्रेस होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको किसी और का वॉलेट गलती से भी यूज नहीं करना है। स्टार्टिंग में जो आप अपना वॉलेट यूज करोगे आपको हमेशा वो सेम वॉलेट यूज करना है, और अगर आप वॉलेट चेंज भी करते हो यू हैव टू मेक श्योर कि वो वॉलेट कोई और फंडिंग पिप से यूज नहीं कर रहा है। अगर आप वो सेम एड्रेस यूज करते हो और कोई और भी वो सेम एड्रेस यूज करता है आपके वॉलेट का, तो आपका वॉलेट जो है वो तो ठीक है, उसको कुछ नहीं होगा, बट आपका फंडिंग पिप्स आपको बैन कर सकता है अंडर द क्लेम्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड अदर एलिगेशंस। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज मेक श्योर दैट आप जो वॉलेट यूज कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ खुद का यूज कर रहे हो और किसी और का वॉलेट नहीं यूज कर रहे हो, और अपना वॉलेट किसी और को यूज करने मत देना, नहीं तो उनका अकाउंट भी बैन हो सकता है। तो अब हम जाएंगे, यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दिया हुआ जैसे आप देख सकते हो कि 1418। अब यहाँ पे मैं अपना एड्रेस कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। मैं ऑफकोर्स अपना एड्रेस हाइड कर दूंगा फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। सारे बॉक्सेस पे हम टिक कर देंगे एंड यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट रिवॉर्ड पे। ओके, यहाँ पे मैंने स्पेस डाल दी, तो स्पेस नहीं डालनी है हमें गलती से भी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे रिवॉर्ड एंड jैसे कि आप देख सकते हो मेरा रिवॉर्ड अब रिक्वेस्ट हो चुका है। तो पिछला रिवॉर्ड जो मैंने रिक्वेस्ट किया था मैंने आपको इस पर दिखाया हुआ था, वो था मेरा 20 मई का रिवॉर्ड, ठीक है, जो सेम मास्टर अकाउंट पे था। जैसे आप देख सकते हो कि मेरा जो 20 मई का रिवॉर्ड है और जो मेरा 10 जून का रिवॉर्ड है दोनों सेम अकाउंट नंबर पे से है, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब ये रिवॉर्ड आई एम प्रीटी श्योर अगले 9 घंटे या 10 घंटे में प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि मेरा पिछला रिवॉर्ड था वो भी पिछले 9-10 घंटे में प्रोसेस हो गया था। एंड दिस इज हाउ यू रिक्वेस्ट योर रिवॉर्ड ऑन फंडिंग पिप्स थ्रू क्रिप्टो एंड थ्रू राइज। आई होप इस वीडियो में आपको कंप्लीटली समझ में आ गया। आई होप आपने मेरा लाइव ट्रेडिंग भी देख लिया है कि ये सारी चीजें मैं लाइव भी करता हूँ एंड लाइव प्रॉफिट करके मैंने आपको वे आउट करके दिखाया, पूरा जीरो से लेके स्टार्ट से लेके एंड तक मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया। एंड आई होप आपको ये वीडियो से नॉलेज मिली एंड जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाया उसका जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने उन छोटी चीजों का ध्यान नहीं दिया देयर इज अ बिग चांस दैट आपका अकाउंट बिना कुछ एक्चुअली बहुत बड़ी गलती किए भी बैन हो सकता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।